Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Our today's lecture will be consisting of part 2 of the viruses that are infecting the enteric tract. So starting with today's learning outcomes, by the end of this lecture we will be able to give an introduction of viruses that affect enteric tract in terms of their properties, transmission and replication cycle. We will be able to summarize the pathogenesis and clinical features of norovirus, Coxsackie, and echovirus, and we will be able to compare the lab diagnosis and treatment of above-mentioned viruses. What are the main introductory points? We discussed them yesterday also, that these viruses, they are transmitted by fecal-oral route and they affect the enteric tract. The norovirus and rotavirus are the leading causes of diarrhea in children and in adults, while the polio, Coxsackie and echovirus, they enter through the enteric tract or the GIT, but they cause signs and symptoms and clinical features that affect the central nervous system. There is a family that is called as picornavirus, in which the enteroviruses lie, and they are polio, Coxsackie and echovirus. These are the members of picornaviruses. The Coxsackie and echoviruses causes respiratory diseases. They are all non-enveloped and that help in their survival to high temperature in the soil, in environment, in all this atmosphere because they are non-enveloped. Coming to our virus for today, that is norovirus. And the norovirus was originally named the Norwalk agent after Norwalk, Ohio in the US, where an outbreak of acute gastroenteritis occurred in 1968. एक एलिमेंट्री स्कूल था ओहियो यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ पे आउटब्रेक हुई थी एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की, और वो आउटब्रेक कहाँ पे हुई थी? चिल्ड्रन थे जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे थे. The norovirus, remember, it's one of its properties कि ये ग्रुप्स को अफेक्ट करता है. फॉर इंस्टेंस चिल्ड्रंस इन नर्सरीज, जो नर्सरीज हैं वहाँ पे चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं. क्रूज शिप्स में, ग्रुप्स में जो लोग ट्रैवल कर रहे हों, ट्रैवलर्स हों, अगर ट्रैवलर्स ग्रुप्स में लाइक बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान जाने का आपका इत्तेफाक हुआ है तो पूरा का पूरा ग्रुप अफेक्ट होगा. Norovirus is the most common cause of viral gastroenteritis in adults, where in the United States also and worldwide. Norovirus is also the most common cause of viral gastroenteritis in children. क्योंकि और कहाँ पे? यूएस में, क्योंकि रोटावायरस वैक्सीन ने लोअर कर दिया था इंसिडेंस रोटावायरस का गैस्ट्रोएंटराइटिस का, इसलिए जो नोरोवायरस है उसने उसकी प्लेस ऑक्यूपाई कर ली. अच्छा, 1969 में ये डिस्कवर हुआ था, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं. इट्स अ नॉन सेगमेंटेड single stranded positive polarity RNA virus which is non-enveloped containing icosahedral nucleocapsid and there is no polymerase. इसके ऊपर स्पाइक्स होती हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे 10 प्रोमिनेंट स्पाइक्स देखी जा सकती हैं और 32 कप शेप्ड डिप्रेशंस देखते हैं. इसकी या तो 2 हैं सीरोटाइप्स या 2 से ज़्यादा हैं. 6 जीनो ग्रुप्स हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीनो ग्रुप है दैट इज जीनो ग्रुप 2 दैट कॉजेज इन्फेक्शंस इन द ह्यूमन बींग्स. द रेप्लिकेशन साइकिल इट रिजेंबल्स विद दैट ऑफ द पोलियो वायरस. पोलियो वायरस हमने पढ़ लिया है. जीनोम आरएनए एक्ट करेगा एज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसलेशन होगी, वायरल प्रोटीन 00 बनेंगे, प्रोटीएजेज एक्ट करेंगे, कैप्सिड और नॉन कैप्सिड प्रोटीन्स बनेंगी, कोटिंग होगी और रिलीज हो जाएगा सेल डेथ से. कोई बडिंग नहीं होगी क्योंकि इसको एनवेलप नहीं चाहिए होता. ये डिटेल हमने कल एक्चुअली कवर कर ली है. हाउ इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड? इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द फीको-ओरल रूट और इंजेक्शन होती है कंटेमिनेटेड सी फूड की या वाटर की, और कोई फूड कंटेमिनेटेड खा लिया है. क्रूज शिप्स में, ग्रुप सेटिंग्स में, ट्रैवलर्स में, वहाँ पे ग्रुप्स में ज़्यादा अफेक्ट करती है. क्यों? बिकॉज इसकी इन्फेक्शन डोज जो इन्फेक्शियस डोज बड़ी लो होती है एंड देयर इज़ एक्सक्रीशन ऑफ वायरस इन द स्टूल्स फॉर वीक्स एंड वीक्स.
स्कूल्स में भी ये लाइक अफेक्ट कर सकता है चिल्ड्रन को. कैंपिंग हो रही है कहीं पे ट्रेनिंग के कैंप्स लगे हुए हैं, वहाँ पे हो सकता है. हॉस्पिटल स्टाफ में है, नर्सिंग होम्स में है, हॉस्टल्स में है, तो वहाँ पे ये एक जो है वो ग्रुप्स को अफेक्ट करेगा. इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंट टू क्लोरिनेशन एंड ड्राइंग इन एनवायरनमेंट. वाटर में, अनकुक्ड फूड में, डोर हैंडल्स. अब आप ये देखें कि डोर हैंडल्स के ऊपर अगर वायरस वहाँ पे लगा रह गया तो वो किस तरह ट्रांसमिट होगा फ्रॉम कंटेमिनेटेड हैंड्स एंड इट विल गो डायरेक्टली टू द इनडायरेक्ट ट्रैक. पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है? म्यूकोजल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक को ये अफेक्ट करता है. वाटरी डायरिया होगा, आरबीसीज नहीं होंगे उसमें, डब्ल्यूबीसीज नहीं होंगे. एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं और उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स जो टिपिकल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की फीचर्स हैं. 2 to 3 days में 2 to 3 days में ये रिजॉल्व हो जाएगा. अच्छा, नोजिया वॉमिटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. 2 to 3 days इसको रिजॉल्व होने में लगेंगे. उसके अलावा अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं उनमें सिर्फ chronic gastroenteritis that can occur beyond 2 or 3 days and it can cause chronic gastroenteritis वहाँ पे अगर होगा. वैसे ये आम लोगों में 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा. Certain patients में it may involve CNS and the sign and symptom. पेशेंट आपके पास सर दर्द, रोशनी उसे बहुत बुरी लगेगी, साइंस होंगे मेनिंजियल इरिटेशन के और ऑप्टेंडेशन होगी. ऑप्टेंडेशन क्या होगी? कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल पे वैसे अलर्ट और वैसे एक्टिवली एक्ट नहीं कर सकेगा, थका थका सा रहेगा. डिसओरिएंटेशन होगी, डिसओरिएंटेशन विद टाइम, स्पेस एंड पर्सन, उसकी रूटीन में चेंजेस आ जाएंगी. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टेंडेशन. एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं इसमें पेशेंट्स और एंटीबॉडी प्रेजेंस से जो डिटेक्ट होंगे. लैब डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे? वॉमिटिस और स्टूल स्पेसिमेन लेंगे जिनका हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हैं. पेशेंट की डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेशन करनी है, डिहाइड्रेशन लेवल जो है वो उसका चेक एंड बैलेंस करना है. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ होगा, सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन द इलेक्ट्रोलाइट रिपोर्ट्स. कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं? पब्लिक मैसेजेस कैसे थ्रो कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग का उनको कितना फ्रीक्वेंटली बता सकते हैं. तो ये सारे मैसेजेस हैं जो आप उनके अंदर एनकलकेट कर सकते हैं अपनी पब्लिक में ताकि उनको अवेयरनेस आ जाए. कमिंग टू द सेकेंड वायरस फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज कॉक्सैकी वायरस. अब कॉक्सैकी वायरस जो है वो क्या क्या चीज़ करता है? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. ये कहाँ पे दरियाफ्त हुआ था? कॉक्सैकी, न्यूयॉर्क में ये दरियाफ्त हुआ था. और इसके अंदर होते हैं हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं. फॉर इंस्टेंस ग्रुप ए कॉक्सैकी वायरस जो है वो करता है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़, हर्पेंजाइना या हेमोरेजिक कंजंक्टिवाइटिस. अब हर्पेंजाइना क्या होता है? ये आप देखिए राइट साइड पे आपके पिक्चर है और ये आप ये देखिए बकल कैविटी में ये आपको नज़र आ रहे हैं, वाइट कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं. राइट, दिस इज कॉल्ड एज हर्पेंजाइना. हेमोरेजिक कंजंक्टिवाइटिस भी कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा. ग्रुप बी क्या करेगा? इट मे कॉज मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोसाइटिस एंड प्लूरोडाइनिया. अब ये प्लूरोडाइनिया क्या होता है? लेफ्ट साइड की तस्वीर देखें जिसमें 2 लोगों ने अपने चेस्ट को, अपनी रिब्स को पकड़ा हुआ है, डायफ्राम को, एब्डोमिनल कैविटी को. इसमें क्या होता है? प्लूरोडाइनिया में एक ऐसे लगता है कि आपको किसी ने सख्ती से जकड़ा हुआ है और वहाँ पे शदीद रिब्स में और इंटरकोस्टल मसल्स में पेन होती है. टाइप ए और बी. अच्छा, ग्रुप ए ने तो किया था हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज, हर्पेंजीना एंड कंजंक्टिवाइटिस. ग्रुप बी ने क्या किया था? मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोसाइटिस एंड प्लूरोडाइनिया. ए और बी दोनों मिलकर क्या करते हैं? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस या नज़ला ज़ुकाम, फेरेंजाइटिस और एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस. न्यूयॉर्क में ये डिस्कवर हुआ था. ग्रुप ए और बी दोनों की जो है पैथोजेनिसिटी वो माइस में ऑब्जर्व की गई है. ए की जो है वो 24 टाइप्स होती हैं और कॉक्सैकी बी की जो हैं वो 6 सीरोटाइप्स होती हैं.
ट्रांसमिशन इनकी कैसे होती है? अच्छा, रेप्लिकेशन साइकिल इनकी पोलियो वायरस से ही मिलती है, तो नोरो वायरस की भी और कॉक्सैकी की दोनों की पोलियो वायरस से मिलती है। ट्रांसमिशन किस तरह होगी? फीकोरल रूट से होगी, लेकिन रेस्पिरेटरी एरोसोल्स आल्सो प्ले अ रोल। रेप्लिकेट करेंगे ओरोफेरिंग्स में और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ह्यूमंस जो है वो इसके नेचुरल होस्ट्स हैं। पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी में किस तरह होगा? ग्रुप ए वायरसेस जो हैं वो ज़्यादातर स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करते हैं, जबकि ग्रुप बी जो है वो वेरियस ऑर्गन्स में डिजीजेस कॉज करते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि जो ग्रुप ए है वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स की डिजीज़ कर रहा था, जबकि ग्रुप बी हार्ट को, प्लूरा को, पेनक्रियास और लिवर को भी अफेक्ट कर सकता है। और ग्रुप ए एंड बी दोनों क्या कर रहे थे? वो दोनों CNS की डिजीजेस कर रहे थे, एंड दैट में लीड टू मेनिंजेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेनिंजेस, फ्लैसिड पैरालिसिस। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये डिसेमिनेट हो जाता है और इम्यूनिटी जो है वो टाइप स्पेसिफिक IgG एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? ग्रुप ए बॉर्नहोम डिजीज। अब बॉर्नहोम डिजीज और डेविल्स ग्रिप ये दोनों जो हैं ये प्लूरोडाइनिया के ही दूसरे नाम हैं, कि आपको ऐसे किसी ने लगता है आपको कि किसी ने जकड़ा हुआ है और आपके रिब्स के और इंटरकोस्टल मसल्स और चेस्ट जो रिब केज है इसमें बहुत ज़्यादा दर्द के साथ पेशेंट आएगा। मायल्जियाज हो सकते हैं। ग्रुप बी में क्या होगा? मायोकार्डाइटिस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट, उसके बाद फिर पेरिकार्डियम, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। और ग्रुप ए और बी में द पेशेंट विल बी प्रेजेंटिंग विद एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और फ्लैसिड पैरालिसिस। लैब डायग्नोसिस में हम करेंगे CSF स्पेसिमेन लेंगे, उसका PCR कर सकते हैं, सेल कल्चर, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी राइज, एंड देयर इज नो सर्टेन ट्रीटमेंट, यू हैव टू गिव द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओनली। कमिंग टू द इकोवायरस एंड अदर एंटेरोवायरसेस। इकोवायरस से क्या बनता है? ये एक एब्रीविएशन है, एक्रोनिम है, किसका? एंटेरिक साइटोपैथिक ह्यूमन ऑर्फन। और ऑर्फन्स इनको पहले इसलिए कहते थे क्योंकि दे वर नॉट एसोसिएटेड विद एनी डिजीज, राइट? लेकिन अब जो है ये अ वैरायटी ऑफ डिजीज करते हैं। फॉर इंस्टेंस दे आर द लीडिंग कॉज, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, फिब्राइल इलनेस कर सकते हैं, रैश होगा या नहीं होगा, इन्फेंटाइल हेपेटाइटिस है, हेमोरेजिक कंजंक्टिवाइटिस। एंटेरोवायरसेस हैं, 30 की सीरोटाइप्स हैं, ट्रांसमिटेड बाय फीको-ओरल रूट एंड लीडिंग कॉज ऑफ एसेप्टिक वायरल मेनिंजाइटिस। डायग्नोसिस उसी तरह करते हैं, PCR से करेंगे और सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो दे आर ऑफ लिटिल वैल्यू। अदर एंटेरोवायरसेस अब कौन कौन से हैं? थोड़े से इसमें और एंटेरोवायरसेस डिस्कस कर लेते हैं। एक है एंटेरोवायरस EV68, एक है EVD68। तो ये कॉमन कॉजेज हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के। कॉमन कोल्ड से वेरी करते हैं, रेंज है इनकी कॉमन कोल्ड से लेके फीवर है, उसके बाद आगे कफ है और नमोनिया के साइन सिम्टम्स या रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ आएंगे। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होता है इसमें। एक होता है एंटेरोवायरस 70 जो कि एक्यूट हेमोरेजिक कंजंक्टिवाइटिस करेगा। एंटेरोवायरस 71 है, दैट इज़ द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस एंड पैरालिसिस। और लास्टली है हमारा बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एंटेरोवायरस 72 एंड इट कंसिस्ट ऑफ हेपेटाइटिस A virus. So coming to the part 2 of today's lecture, we will briefly go through the recap of special virology consisting of herpes, varicella, smallpox, respiratory viruses, childhood disease, animal reservoir and enteric tract related viruses. So let's have a look. अब हम ये करते हैं कि इस स्लाइड में हम एंटेरिक वायरसेस को ही ले लेते हैं। जस्ट वेट। कल जो हमने पढ़ा था एंटेरिक वायरसेस, सबसे पहले नाम हमने देखे थे जो GIT इन्फेक्शंस करते हैं। इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हमने आज रिवाइज कर लिए। रोटा वायरस और पोलियो वायरस, दे वर द कॉजेज ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस। रोटा यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा करता था, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। रेप्लिकेशन है रोटा वायरस की, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे लगता है। फिर रूट ऑफ ट्रांसमिशन किया था, पैथोजेनेसिस की थी। विरुलेंस में क्या होता है इसके?
ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, रोटाशील्ड थी, रोटाशील्ड जो है वो उसको हमने विदड्रॉ कर दिया था, रोटारेक्स और रोटाटेक थे। आप मैसेजेस क्या दे सकते हैं, पब्लिक सर्विस मैसेज, कौन कौन से 3 कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी तक पोलियो एरेडिकेट नहीं हुआ, पोलियो की फैमिली का क्या नाम है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोलियो वायरसेस के, एंटेरो वायरसेस में कौन से आते हैं, राइनो में कौन से आते हैं, फिर होस्ट्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, ये आगे रेप्लिकेशन साइकिल आ गई है पोलियो वायरस की। कमिंग टू द ट्रांसमिशन, किस तरह ट्रांसमिट होते हैं, रेप्लिकेट कहाँ पे होंगे, होस्ट कौन कौन से होते हैं इनके, पैथोजेनेसिस कैसे कैसे ये स्मॉल इंटेस्टीन में और लिम्फॉइड टिश्यू में रेप्लिकेट होंगे, ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाएंगे, सीएनएस में, मोटर न्यूरॉन्स में क्या करेंगे। उसके बाद फिर इसमें 4 तरह के जो रेंज ऑफ रिस्पॉन्स हैं, एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन थी, अबॉर्टिव थी, नॉन पैरालिटिकल थी और पैरालिटिक थी। और सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी कॉमन होती है। लैब डायग्नोसिस में कल आपसे मैंने पूछा था कि क्या क्या करेंगे, सेल कल्चर है, एंटीबॉडी राइस है, स्पेसिमेन कौन से करेक्ट करेंगे, साइटोपैथिक अफेक्ट किस में देखेंगे, पाकिस्तान का क्या करंट स्टेटस है रिगार्डिंग पोलियो। उसके बाद फिर वैक्सीनेशन, किल्ड या साल्क और लाइव और सेबिन वैक्सीनेशन, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कल हमने क्वेश्चंस भी किए थे कि पोलियोमाइलाइटिस किस तरह की वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकता है, दोनों वैक्सीनेशंस क्या इंड्यूस करती हैं, कौन सी आजकल ज़्यादा प्रेफर है, EIPV क्या है और पास्ट में कौन सी ज़्यादा प्रेफर होती थी, डिसएडवांटेजेस क्या थे उसके, आउटब्रेक्स जो हैं वो हम पोलियो के क्या रोक सकते हैं और इम्पॉर्टेंस क्या है SV40 वायरस की, इसका क्या रोल है पोलियो वैक्सीनेशन में, पैसिव इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है और क्वारंटाइन पेशेंट्स को करना चाहिए पोलियो के या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड of part 1 of today's lecture.